Hello everyone, myself Vinay Maurya. Today we will discuss about a topic that is related to neurological test, that is lumbar puncture. We will know what is lumbar puncture test. Lumbar puncture test is a medical procedure in which a needle inserted into a lower spine vertebra L3 L4 or L4 L5 for diagnostic or therapeutic purpose. लंबर पंचर एक ऐसा टेस्ट है जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लंबा पंचर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक 23-25 गाज निडल क्या करते हैं, लोअर स्पाइन में इंसर्ट करते हैं, जिससे हम सीएसएफ को विथड्रॉ करते हैं। सीएसएफ को निकालने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या करते हैं, टू कलेक्ट सीएसएफ। सीएसएफ को हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीएसएफ का प्रेशर मॉनिटरिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन टू गिव स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट वन एडमिनिस्टर मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन है जो हम स्पाइनल रूट से इंटरथिकल देते हैं, उस पर्पज के लिए भी इंटरथिकल रूट से कहते हैं। इसलिए भी हम जो है स्पाइनल लंबार पंचर करते हैं। लंबार पंचर में जैसे सीएसएफ, सीएसएफ क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय कोराइड plexus and absorbed by subarachnoid villi. CSF produced by choroid plexus in third ventricles and absorbed by subarachnoid villi, and 0 to 0.5 to 1 ml per minute it is secreted, and in 24 hours 500 to 700 ml it will be secreted within 24 hours. 24 hours में लगभग 500 to 750 ml it will be secrete, and about 600 ml CSF will be absorbed by subarachnoid villi. लगभग 100 to 150 ml will be remains into the brain. And normal function of CSF, it will provide nutrition to the brain and it protect brain layers and meninges, and it is providing nutrition to the brain. After that, now we will see indications of lumbar puncture test. Which type of, there are two type of indications. First one diagnostic purpose and second one therapeutic purpose. In diagnostic purpose, we will detecting some finding to identify the neurological conditions. First one, suspected meningitis. In diagnostic purpose, first one, to detect suspected meningitis, we will done lumbar puncture test, in which we will see increased protein level into the CSF and decreased blood sugar level, and TLC will be increased. Protein and TLC will be increased, and sugar RBS level in CSF will be decreased. So it is indicating suspected meningitis. And next one, GBS. GBS is Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is a autoimmune disorder in which inflammation of or autoimmune disorder
In auto GBS, some nerve will be damaged. That's why some proteins will be leak out into the CSF, and WBC will be WBC will be decreased. So it is indicating uh, GBS conditions. Next one, multiple sclerosis. What is multiple sclerosis? Multiple sclerosis is a medical conditions or neurological condition in which inflammation of, और इट इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यू नो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा, हमारे खुद की जो बॉडी के एंटीबॉडीज हैं वो हमारे खुद के ही सेल्स को डैमेज करते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, ओलिगोक्लोनल बैंड्स, एक टाइप का एंटीबॉडीज है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन में डिटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सीएनएस इन्फेक्शन। अगर एनी टाइप ऑफ सीएनएस इन्फेक्शन हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे इंसेफ्लाइटिस हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या अदर लाइक कोई कंडीशन है, उसमें हम सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हेड इंजरी। इन हेड इंजरी सीवियर ब्लड ट्रॉमा हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी जिसमें काफी सीवियर फॉर्म में हुआ है। So in head injury, we will find out any type of blood leaking or blood flow into the CSF because of head injury. So in head injury, we will identify bleeding, blood content into the CSF. Next one, subarachnoid hemorrhage, मतलब किसी भी कारण से सब अरेक्नॉइड स्पेस में ब्लड का फ्लो हो रहा है या ब्लड लीक आउट हो रहा है, दैट इस कंडीशन में हम सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मलिग्नेंसी। अब किसी को ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में कैंसर सेल्स डेवलप हो गए हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीएसएफ के थ्रू कि उस कैंसर सेल्स जो है वो मलिग्नेंट मतलब वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट में वो क्या है, स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। तो इस पर्पज के लिए भी हम सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और भी अदर पर्पज हैं जिसके लिए हम सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो दीज आर दी डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस फॉर लंबर पंक्चर टेस्ट। नेक्स्ट वन, थेराप्यूटिक इंडिकेशंस। कौन कौन से ऐसे थेराप्यूटिक इंडिकेशंस हैं जिसमें हम लंबा पंक्चर टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है स्पाइनल एनेस्थीसिया। किसी भी सर्जरी के लिए जो इसमें हम स्पाइनल सर्जरी करते हैं, स्पाइनल अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, कोई भी सर्जरी करते हैं उसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राथिकल मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन हैं जो आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी हम स्पाइनल रूट से, इंट्राथिकल रूट से देते हैं। तो दो पर्पज हो गए, थेराप्यूटिक के लिए, कुछ मेडिसिन देने के लिए, और एनेस्थीसिया देने के लिए, लगभग हम थेराप्यूटिक पर्पस में करते हैं। नेक्स्ट वन, कंट्राइंडिकेशंस ऑफ लंबार पंक्चर टेस्ट। किन किन कंडीशन में हमें लंबार पंक्चर टेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, जैसे इंक्रीज आईसीपी, इफ पेशेंट हैविंग इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उस कंडीशन में अगर आईसीपी किसी भी मरीज का इंक्रीज है, उस कंडीशन में हम लंबार पंक्चर टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ वर्टिब्रल हर्निएशन। मतलब हर्निएशन मतलब क्या होगा कि वो बल्ज आउट हो सकता है या हर्निएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वन, अनकरेक्टेड ब्लीडिंग। पीटीएनआर का लेवल जो है, अगर हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं किसी भी माइनर प्रोसीजर के लिए, हम पीटीएनआर कराते हैं, तो उसमें आईएनआर और प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, लो प्लेटलेट काउंट्स। अगर मरीज का प्लेटलेट काउंट्स बिलो फ्रॉम नॉर्मल रेंज, ज्यादा कम है, तो हम उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। इफ एंड सीवियर स्पाइनल डिफॉर्मिटी, इफ some patient having spinal deformity like kyphosis, lordosis। स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है जो कि एक शेप में नहीं होगा, जिसमें डिस्क
प्रॉपर तरीके से नहीं होते स्पाइनल के, तो उस कंडीशंस में हम लंबा पंक्चर टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिव, अगर मरीज कोऑपरेटिव नहीं है तो इस कंडीशंस में भी हम लंबार पंक्चर टेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, सस्पेक्टेड स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस, अगर हमें स्पाइनल जहां पे देना है उसमें कहीं एब्सेस है, इन्फ्लेमेशन है या सेप्सिस हो गया है, पस फॉर्मेशन है, उस कंडीशंस में भी हम स्पाइनल इनिशियर नहीं देंगे क्योंकि वो सेप्सिस अगर हम नेडल इंसर्ट करेंगे, वो सेप्सिस वो एब्सेस क्या हो सकता है, अदर जगह स्प्रेड हो सकता है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपमेंट्स, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हम अरेंज करेंगे लंबार पंक्चर टेस्ट के लिए। आपके पास स्टाइल ग्लव्स होने चाहिए, मास्क, गाउन और बेटाडीन सॉल्यूशंस, एलपी निडल्स जिस गॉज की 23 गॉज 25 गॉज की होनी चाहिए, स्टाइल कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप सीएसएफ कलेक्ट करेंगे, सिरिंज 5 to 10 ml की होनी चाहिए, adhesive dressing and sterile gauze piece, pad and draw sheet, एक ट्रे आपको तैयार करना पड़ेगा। आफ्टर दैट